Hello, dear students, welcome back to your history class. Today, we'll be continuing our chapter number 12 Colonialism and Indian Towns. In the last video, we have discussed a lot about colonial rule and Indian towns, about municipal reports and census reports too. And in this video, we'll be discussing some more topics on colonialism and Indian towns. The topics to be covered in this video are changes in the 18th century. We'll talk about all the changes that took place in the 18th century. किस तरह से old towns को new towns ने replace किया, किस तरह से अर्बन डेवलपमेंट हुई, किस किस एरिया में हुई, पोर्ट्स जो थे या नए टाउन्स जो थे वो किस तरह से लगते थे, फोर्ट्स थे उनके अंदर आए, और एक जो नया एनवायरनमेंट आया था सामने को हम लोगों के, वो किस तरह का दिखता था, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So if we talk about the changes in the 18th century, what happened during the 18th century, old towns lost much of their importance and new towns came into existence. With the gradual decline of Mughal Empire, its capital cities like Delhi, Agra lost their political authority, and the emergence of new regional powers increased the importance of cities like Lucknow, Hyderabad, Srirangapatnam, Pune, Nagpur, Baroda and Tanjore. The artisans left the old Mughal centers and settled in these new capitals where they found work and patronage for the new rulers. The merchants also found employment in the new kingdoms. Many local notables and some officials of the Mughal court in the northern India created new settlements known as कस्बाज और गंज और कस्बा बनाए उन्होंने, छोटे छोटे नए सेटलमेंट्स का नाम दिया. और कई जगहों पर क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो बिगड़ती गई बिकॉज वहाँ पर लूट पाट होनी शुरू हो गई थी और उससे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डिक्लाइन. The commercial activities of the European commercial companies also helped in the growth of towns during trading centers. From the mid-18th century, there was a change in the nature of urban development. कुछ important commercial centers थे like Surat, Masulipatam, Dhaka, declined when the trade shifted to other places. और अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुका था ट्रेड, पोर्टुगीज इन पानाजी, पोर्टुगीज चल जा चुके थे कहाँ पर, पानाजी गोवा साइड, डच मासूलीपट्टनम, मद्रास में ब्रिटिशर्स, एंड फ्रेंच कहाँ गए, पौंडीचेरी में. After the Battle of Plassey in 1757, the trade of the English East India Company also expanded. The colonial port cities जैसे कि मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे soon emerged as new commercial capitals. नई commercial capitals के तौर पे कौन सामने आया अब, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा. जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर थी वो इन सेंटर्स पर सेंटर्ड थी बेसिकली. कई नई बिल्डिंग्स, नए ऑक्यूपेशंस और इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया. और by the end of 18th century, these had become the biggest cities in India in respect of population. Even in spite of so many years that the Britishers have gone out of India, these cities are, a great boost to both commerce and population too. At present also, आज भी हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें तीनों ये सबसे पहले आती हैं, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. Now comes the topic, the trends of change, or you can say the urban development in 19th century and after that. The census figures indicate that after 1800, the urbanization in India was really sluggish. Throughout the 19th century and up to first 2 decades of 20th century, the proportion of urban population to total population in India was very low and also has remained stagnant. During 1900 to 1940, the urban population increased from about 10% to 13%. देखो परसेंटेज वाइज चेंज कितना आ गया, 10 से 13% होगी. और अब जो फॉर्च्यून्स थे, जो गुड फॉर्च्यून्स थे इंडिया के, दे सून चेंज आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ रेलवेज ऑफ इंडिया इन 1853. और ये फर्स्ट जो रेलवेज थी वो कहाँ से चली थी, बॉम्बे टू
Thane. Economic activities gradually shifted from traditional towns which were located along old land and river routes. Now, every railway station could serve as a collection of depot for raw materials and distribution पॉइंट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. अब हर रेलवे स्टेशन पे जैसे डिपो नहीं होते उस तरह से बन चुके थे, आप सामान लेके जा सकते थे लोग. For instance, Mirzapur town, situated on the banks of Ganges, which specialized in collection of cotton and cotton goods from Deccan, declined when railway line linked in it with Bombay. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब रेलवे लाइंस इस्टेब्लिश हुई तो रेलवे वर्कशॉप्स भी बननी थी, रेलवे कॉलोनीज़ भी बननी थी, रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ. जमलपुर, वोल्टेयर, बरेली, ये सब एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर रेलवेज़ सूनर एंड लेटर क्या हुआ, इस्टेब्लिश की गई. अगर हम बात करें कि अब ये नए जो टाउन्स थे किस तरह के लगते थे, तो सबसे पहला जो इनका फीचर था, यहाँ पर पोर्ट्स, फोर्ट्स और सेंटर्स फॉर सर्विसेज हुआ करते थे. When 18th century closed, Madras, Bombay and Calcutta had developed into important ports. तीन important ports सामने आए. The settlement established here were convenient points for collecting goods. The English East India Company had set up its factories. Factories established की because of यूरोपियन कंपनीज, जो कि क्या होता था, एक प्रॉपर डिफेंस था अगेंस्ट आर्म्ड अटैक का रिवाइवल के टाइम पर. और कई फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई किया जाता था. मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज, कैलकाटा में फोर्ट विलियम एंड बॉम्बे में फोर्ट मार्केट बनाए गए, और जिससे क्या था, ब्रिटिश सेटलमेंट्स की एग्जिस्टेंस सामने रखी जाती थी. प्रॉपरली पता लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हैव प्रॉपरली सेटल्ड देयर इन दीज प्लेसेस. वी कैन सी दैट फ्रॉम देयर फोर्ट्स. एंड you know, right from the very beginning, there were separate houses for Europeans and Indians. The European settlement were known as White House towns, while for those of Indians, it was known as black towns. These distinctions became sharper once the Britisher became a political power in country. और एक बात और कि दो important towns थे यहाँ पर, two industrial cities रही सामने. That was कानपुर. कानपुर में क्या बना, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल. और जमशेदपुर, टाटा जी के का जो हम फेमस है लीडर बने, वो किस में, स्टील प्रोडक्शन में. द ब्रिटिश नेवर वांटेड टू मेक इंडिया एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री. Their discriminatory colonial policies hampered the growth of industries. No doubt, Bombay, Calcutta and Madras grew into large cities, but this did not mean any dramatic economic growth of colonial India as whole. Britishers ने डेवलपमेंट तो की यहाँ पर, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी दे एक्चुअली नेवर वांटेड कि इंडिया प्रॉपरली ग्रो करे, ना किसी भी तरह से, ना इकोनॉमिकली और ना ही एजुकेशनली. बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडियंस को समझ आ जाएंगी. अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू अर्बन डेवलपमेंट. बच्चे, when the political power and patronage shifted from native rulers to the merchants of East India Company, जब इंडियन के नेटिव रूलर्स से शिफ्ट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी पे गई, कॉलोनियल सिटीज़ के अंदर भी पता लगा कि ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, ब्रिटिश कल्चर को फॉलो किया जाना शुरू हो गया. इंडियंस जो कि इंटरप्रेटर्स या मिडलमैन या ट्रेडर्स या सप्लायर्स की तरह काम कर रहे थे, वो क्या था, उनको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आई नई सिटीज़ में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो सीज़ और रिवर्स के आसपास ज़्यादा चलाई जाती थी. मर्सेंटाइल ऑफिसर्स, shipping and insurance companies, transport depots and banks were also located along the sea shore. The chief administrative office of the company at Calcutta was Writers Building थी. और क्या हुआ, फोर्ट्स के आसपास यूरोपियन मर्चेंट्स ने क्या किया, अपने गार्डन हाउसेस बनाए और क्लब्स बनाए, थिएटर्स बनाए. इस तरह से सब कुछ क्रिएट किया कि हर तरह से ब्रिटिशर्स और इंडियंस क्या हो जाएं, आपस में डिस्टिंग्विश हो जाएं. वाइट पीपल वर्सेस ब्लैक पीपल दोनों क्या हो जाएं, प्रॉपरली डिफरेंट हो जाएं. और वाइट एरियाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं. कोई भी सैनिटेशन वगैरह की जो फैसिलिटीज़ थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वाइट एरियाज़ में ज़्यादा थी ताकि उनको कोई एपिडेमिक से ख़तरा ना हो. लेकिन ब्लैक एरियाज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता था. वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता था, ब्लैक एरियाज़ में काम करने वाले लोग रहा करते थे और
वाइट एरियाज़ में कौन रहते थे? काम करवाने वाले लोग। इन लोगों ने अपने लिए गार्डन हाउसेस भी बनाए, प्रॉपर ग्रीनरी के साथ अपने हाउसेस बनाए ताकि इनको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो सके। और तो और आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ पे जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम्स थे प्रॉपरली वेल बिल्ट थे, लेकिन सिर्फ वाइट एरिया के अंदर। अंडरग्राउंड पाइपिंग सारी थी सिर्फ वाइट से एरिया के अंदर। ब्लैक टाउन्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था इंडियंस के लिए। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को और हम लोगों को इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम सोशल लाइफ पढ़ेंगे और किस तरह से इन्होंने हिल स्टेशंस को यूज़ किया, किस तरह से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास को चेंज करने की कोशिश की। हम लोग उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।